ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਆਉਣੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੈਰ ਰਹਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ ਪੱਲੀਕਨ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਈਏ। ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, 6 ਕੋਲੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 7 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਮੁੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਫਰੈ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਨੂੰ, ਜੋਧਪੁਰ ਕਨੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਫਰੈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਵੰਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ 3 ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और आपकी जो कौन है वो जिसके रसोलियाँ थी? नंद थी, पंजाब से आती। अच्छा, इनकी ननंद है। और उसके कितनी रसोलियाँ थी? 3 रसोलियाँ थी। 3 कैसे पता चला? बच्चे दानी थी, अल्ट्रासाउंड कराया, उससे पता चला। सो अल्ट्रासाउंड कराया और उसके 3 रसोलियाँ थी, 3 गांठें थी, ट्यूमर थे 3। और जब उसके लिए इन्होंने प्रार्थना की, चर्च में लेकर आए थे? हाँ, चर्च में लेकर आए। यहाँ चर्च में लेकर आए, उसके लिए प्रार्थना हुई और फिर वो निकल गई हैं। निकल गई, अल्ट्रासाउंड कराया वो ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में वो नहीं है गांठें, वो निकल गई। हालेलुया। सो 3 गांठें थी और प्रार्थना से, ये ऐसी कहानी नहीं है, पहले वाले अल्ट्रासाउंड में वो 3 गांठें हैं और बाद वाले अल्ट्रासाउंड में वो 3 गांठें नहीं हैं। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अपने बेटे की गवाही देना चाहती हूँ। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो डॉक्टर ने क्या कह दिया था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होएगी। तो मैंने प्रार्थना की वहीं पे, और सबने मेरे लिए प्रार्थना की, मम्मी ने भी की, इसलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना ये की थी
कि मेरा लड़का ही हो, तो मेरा लड़का ही हुआ है। हालेलुया। तो सब लोग, जो छोटी बहन की भी शादी हुई थी मेरे साथ ही, तो इसकी तो लड़का हो गया है, मेरा कुछ भी नहीं था। तो मैं परमेश्वर को बचपन से मानती थी, 10 साल की थी तब से मैं परमेश्वर को मानती हूँ। सब लोग ऐसे बोलते थे कि छोटी बहन की लड़का हो गया, बड़ी बहन के अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला मेरे प्रभु की इच्छा होगी जब मेरे होगा, और इसकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा, मैं उनकी इच्छा का पालन करूँगी। तो मेरे डॉक्टर के पास गई, मैं दवाई खाई, तो डॉक्टर ने ऐसे बोला बेटा 6 महीने तो कोर्स कर पूरा दवाई का, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऊपर लेके हाथ में हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने दवाई छोड़ दी, डेढ़ दिन दवाई खाई थी, 1.5 महीने दवाई खाई थी। इसके बाद मैंने दवाई लेना बंद कर दिया और मैं सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करती थी। और मैं यहाँ चर्च में आई, इस चर्च का मुझे पता लगा था, तो मैं यहाँ चर्च में आके सामत का तेल पास्टर से प्रार्थना करा के वो सामत का तेल रोज़ मैं पेट पे लगाती थी और ऐसे बोलती थी प्रभु आप ही मुझे आशीष दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, मेरे डॉक्टर सबसे बड़े आप हो, आप ही मुझे आशीष दोगे। तो परमेश्वर ने मुझे इतना सुंदर बच्चा दिया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी मेरी ये गवाही है कि मेरा लड़का आज 3 महीने का हो गया, आज 9 तारीख को हुआ था पिछली बार, आज 3 महीने का हो गया। प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी गवाही ये, अगले शुक्रवार को मेरा ऑपरेशन हुआ था छाती का, क्योंकि मेरी छाती में ना मुआद भर गई थी, पता नहीं काहे की, जो बहुत सारी मुआद डॉक्टर ने निकाली। मेरा ऑपरेशन ही छाती का हुआ है, 8 दिन हो गया आज मेरे ऑपरेशन को। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा ऑपरेशन अच्छी तरह हुआ है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरा बच्चा जब से हुआ है, जब से बहुत रोता है, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखा दी, पर मेरा दिल ये गवाही देता था कि परमेश्वर के पास जाएगी तो परमेश्वर इसे चंगाई देगी। तो परमेश्वर के पास भवन में मैं आज से लेके आई हूँ, ये पहली बार आया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इसे सारी चीज़ों से आज़ाद कर दिया और प्रभु ने इसे नई सामर्थ दी, विश्वास करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। मैं अब मेरी जेठ की लड़की की शादी 8 साल हो गए हुए, तो उसको सारी जगह दिखा लिया, उसका बच्चा नहीं ठहरा उसके, तो डॉक्टर ने कने दिखाया, तो डॉक्टर ने बोली कि इसकी नाम बच्चादानी की ट्यूब बंद है। और मैंने चर्च में 5-6 महीनों से उसका नाम लिखवाया, उसकी प्रार्थना करी, तो उसको डॉक्टर ने से दिखाया, अब गए कल परसों, तो उसको प्रभु की दया से 2 महीना है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब दर्द होता था और गांठ बन गई थी बच्चेदानी के पास, तो डॉक्टरों ने ऐसे कहा कि इसकी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ेगी, ख़राब हो गई है, और ये नहीं मतलब गांठ भी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर उसके एक ही लड़का है, तो फिर वो मेरे पास आई, मेरी भतीजे की बहू, कहने लगी बुआ जी मेरे को तो बहुत परेशानी है और मेरा ऑपरेशन होगा और मेरे बच्चेदानी निकाल देगा, मेरा एक ही लड़का है। मैंने कहा मैं प्रभु पे विश्वास करती, तू विश्वास करेगी? कहने लगी हाँ बुआ जी आप प्रार्थना करना। फिर मैंने प्रार्थना की, उसका ऑपरेशन हुआ, सिर्फ गांठ निकाली उसकी और बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अब सही है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जय मसीह की, रब के दासों को भी जय मसीह की। और प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। 2018 में मुझे गवर्नमेंट जॉब प्रभु ने दी थी और 2019 में प्रभु की दया से हमारी शादी हो गई, जो प्रभु को साक्षी मानकर और प्रभु के दास के द्वारा हमारी शादी हुई और बहुत अच्छा परिवार प्रभु ने दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस नए साल में अभी जनवरी महीना खत्म ही नहीं हुआ था कि प्रभु ने हमें आल्टो से स्विफ्ट गाड़ी लेके दिया है, बहुत बड़ी आशीष दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, प्रभु के दास को भी जय मसीह की। मैं गवाही देती हूँ, जब मैंने नाम नहीं लिया था तो मैं बहुत गरीबी में थे, बहुत ही मेरे घर पे गरीबी कर्जे में थी, और जब से मैंने नाम लिया मैं बहुत आशीष हूँ। मुझे प्रभु ने नौकरी दी, मुझे अच्छा घर मकान बना कर दिया और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। और दूसरी गवाही है, मेरे बेटे को 2 महीने पहले चोट लगी थी और चोट भी लगी, गले के अंदर लगी, जो गले में 5-6 टांके आए और प्रभु ने उसे हाथों हाथ बचाया और अंदर तक चोट लगने नहीं दी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह। प्रभु ने हमें जब से परमेश्वर में आया हूँ तब से बहुत सारी आशीष दिया है। घर पे हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं था, हमारे छप्पर भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें छप्पर पहले दिया, फिर उस छप्पर के जगह पे मकान दिया। हमारे पास अब दुकान भी है, गांव पे दुकान किराया दे रखा हूँ और यहाँ भी परमेश्वर ने हमें आशीष दे रहा है। हमने 13 तारीख को लड़के का जन्मदिन था, उस दिन परमेश्वर ने उसको गाड़ी लेकर दी है। हम परमेश्वर को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं
गवाही देना चाहती हूँ कि पास्टर जी ने वचन में सिखाया था कि हमें स्वर्गीय भाषा में भजन गाने चाहिए। मेरी मम्मा स्वर्गीय भाषा में भजन गाते हैं और घर पे भी अगर गीत चलते होते हैं तो मम्मा सारे गीत स्वर्गीय भाषा में गाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पिछले संडे मेरी मम्मी और भैया का एक्सीडेंट हो गया था और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था और आसपास के लोग बता रहे थे कि वहाँ पर आज तक कोई भी नहीं बचा। सो पहली बार मेरी मम्मी और भाई वहाँ से बचकर आई हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरी मम्मी और भैया को बचा लिया। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी भाभी के बेटा ही हुआ है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे पेट में ज़्यादा दर्द था तो मैंने फादर जी से प्रेयर करवाया तो 1 घंटे के अंदर मेरा दर्द सही हो गया। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना था तो उस फार्म पे साइन नहीं हो रहा था। हम 4 साल से उस फार्म को लेके घूम रहे थे। तो आज जय मसीह जी की कृपा से मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ, वो फार्म हमारा बन के तैयार हो चुका है। हालेलुया। पास्टर ਨੂੰ भी जय मसीह। मैं बहुत बीमार थी, फोन ते प्रार्थना कराई पास्टर तो ते बहुत मेरे पेट में दर्द था, रोटी खाती उल्टी आ जाती थी, अरे दस्त भी बहुत जोर के लगे थे। मैं प्रार्थना कराई है प्रभु यीशु मसीह की पास्टर से ते अभी बिल्कुल ठीक है। मैं 58 से आई हूँ। सारे बहन भाइयों जय मसीह जी। सारे मेरे कल पूरा मूँह विंगा हो चुका सी तो ब्लड बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया सी, सारे गंढा बन गई सीगियां। तो मैं धन्यवाद करती हाँ परमेश्वर का, मैं सही सलामत हाँ। मेरे पति दी भी जेड़े जख्म सी वो हट गए है। हालेलुया। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरी गवाही ये है कि मैं जो उपवास रखती सी और मैं प्रार्थना च ही मंगती सी यीशु मसीह मैनू गैर भाषा दे और मैनू यीशु मसीह ने गैर भाषा दी। मेरे वालों मैं गवाही देना चाहनी है। मैनू 20 साल हो गए सी विआही नूं। मेरे पति जी बहुत ज़्यादा दारू पींदे सी, बहुत ज़्यादा शराब पींदे सी, किसी तो नहीं मनते सी, किसी की गल नहीं मनते सीगे। मैं परमेश्वर मुरे रो रो के प्रार्थना की, परमेश्वर किस दिन मैनू शिफा देंगे, मेरे पति नूं किस दिन शिफा देंगा। मैं 3 महीने लगातार प्रार्थना की, लगातार उपवास रखे। मैं कहा परमेश्वर चाहे तो मैनू शिफा दे दे चाहे मेरा छुटकारा पवा दे। अज इस टाइम उन्होंने टीवी हो गई सी, मेरे पति ने बहुत ज़्यादा टीवी हो गई सी, मूँह चो खून दस्तां चो खून आने लग गए सी। जवाब देता सी डॉक्टर ने। इस टाइम मैनू 2 महीने हो गए घरे गई नूं। मेरे पति ने दारू छड्डती और टीवी तो छुटकारा पा लिया। मैं 1% भी दवाई नहीं दवाई। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है। मेरा पति इस टाइम उस जगह पर बैठा, इस टाइम गवाही देने वास्ते भी तैयार नहीं हो जाता। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती, शुक्र करती जिस तरह मैनू शिफा दी है सबनों शिफा दे। धन्यवाद यीशु। मेरी गवाही ये है कि प्रभु हर पल मेरे साथ रहते हैं और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो देखकर हैरान होती है कि मेरा ना प्रैक्टिकल था तो मेरे को वाइवा देने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन किए मैं सोच रही थी मैं कैसे बताऊंगी, लेकिन प्रभु मेरा हौसला बनकर मेरे साथ रहे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने सारे आंसर अच्छे से एग्जामिनर को सुनाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और है कि जब मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो जब उनका एग्ज़ाम होता है ना तो वो कहती हैं कि तू अपने जीसस को बोल दे, वो हमारी मदद करेंगे। और ना उनका भी विश्वास आगे बढ़ रहा है। मैं उनके लिए जो भी कहती हूँ ना, परमेश्वर इनके लिए कर दे, इनके विश्वास के अनुसार इनके साथ हो जाए, तो वो सच में हो जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरी बातों को मान लेते हैं और मेरे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। मेरे को महसूस होता है कि प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मेरी मम्मा की गवाही है कि मेरी मम्मा ना किन्नू तोड़ने जाते हैं तो वहाँ से बहुत ऊंचा पेड़ था, उसके ऊपर से नीचे गिर गए थे। मम्मा को चोट नहीं आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बुरे तरीके से गिरे थे, ऐसे लोग हैरान हो गए कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बुरे तरीके से गिरे, इतने ऊंचे से गिरे तो भी मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो मैंने जब एक्सरा करवाया उसमें डॉक्टर ने बताया इसके जो डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और मनकाना गैप हो रहा उसमें। तो घर पे पास्टर जी प्रार्थना करने गए थे तो जो मैंने प्रार्थना करवाई उसके बाद जब शनिवार को हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करी।
कि मेरी हड्डी ये बिल्कुल मन का ठीक हो जाए। तो परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर आप तो हड्डियों से हड्डियां जोड़ने वाले परमेश्वर हो। तो परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, परमेश्वर ने कहा लो मैं चंगाई देता हूँ ऐसे हाथ करके। तो मैंने उस आशीष को ग्रहण किया और आज तक मेरा कमर दर्द बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल लात में दर्द नहीं होता। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी दिमाग दी नाड़ा चलन लग गया सी, मैं दवाई बहुत लीती, मैनू आराम नहीं आया। फिर मैं क्या मैं अगवाई दूंगी जाके चमत्कारी चर्च च, तो मेरे आराम होना चाहिए। मैं रो रो के बहुत ज़्यादा भी नाड़ा चलदी होंदियां सी। मैं क्या कि मैं पागल भी दिमाग चक्या जाऊगा मेरा, मैनू आराम नहीं होंदा। मैं रोंदी सी, रोदी मैं प्रार्थना करदी होंदी सी। फिर एक दिन मम्मी ने प्रार्थना की, कहंदी ने भी तू और प्रार्थना कर। फिर मैं प्रार्थना करी, मैं कहा मैं चमत्कारी चर्च से जाके अगवाई दूंगी, प्रभु मैनू आराम होना चाहिए। कि उस दिन मैं ना गोली लीती ना कोई दवाई लीती, हूँ मैनू आराम हैगा जमा बिल्कुल, पता ही नहीं लगता भी, क्योंकि मेरी सर्दी नाड़ा दुखदी होंदियां सी कि नहीं, जमा ही बिल्कुल। सारिਆਂ जय मसीह दी, सारिਆਂ जय मसीह दी, और पास्टर जी नू भी जय मसीह दी। धन्यवाद सारी संगत दे। मैं बहुत, मेरा ना ब्लड वादा सी, मैं आख्या मैं बचदी नहीं। मैं आख्या प्रभु जी नू, प्रभु जी तू ही बचाउण वाला, मैनू ना चर्च च जाना तो मैं अगवाई देवां, मैं तू रखण वाला। धन्यवाद धन्यवाद जी सारे। मैं मेरे बेटे की गवाही दिनी है कि मैं कई दिन हो गए मेरे बेटे नू बुखार बहुत ज़्यादा हो गया सीगा। ते मैं कम तो 4 बजे आई तो मैं देखा बाहरले पासे बैठा तो कंबी जावे। तो मैं सोचा, मैं क्या भी मेरा बेटा एवं किवें करी जांदा, ते वे बोर्ड मारी जावे। बाहर बैठा तो मेरे ना भी अखों च पानी आ गया, मैं रोन लग गई। मैं चक के असीं 2 जानियां ने तंदर ले, तो चलिया भी नहीं जांदा सी, लत्तां इहदियां एवें मुड़ गईयां सी मेरे बड़े बेटे दियां। ते असीं चक के तैनूं जदों मंजी दे उत्ते पाया तो इन्ना बोर्ड मारी जावे, कहंदा मम्मी मैं मर गया, मम्मी मैं गया, हाय यीशु मैनूं बचा लै, यीशु मैनूं बचा लै, एवें करके भी बोलन लग गया। मैं की कीता, मैनूं बाइबल पढ़नी तां आंदी नहीं। मैं ना खोल के बाइबल ते वचन मेरे छाती ते रख ते मैं कहा परमेश्वर कि मैनूं पढ़ना नहीं आउंदा, प्रभु तू ही है इहनूं बचाउण वाला। तेरे वचनां च लिखिआ कि तेरा धर्मी दा अंश बचाया जाएगा। प्रभु मैं कहा मेरे बेटे नूं बचा। फिर मैं तो फटाफट मैनूं फोन ना मिलाना आवे, फिर मैं किसी का फोन मंग के ते मैं दवा दम इत्थे चर्च दे विच मैं फोन किया, भैन जी ने फोन चुक्या, फिर उन्हां तो प्रार्थना करवाई मैं, ते मेरा बेटा उस वेले ठीक हो गया। फिर ना हालेलुया बोलन लग गया जोर जोर दी, ते कहंदा प्रभु आ गया, मैनूं प्रभु ने बचाया, मैनूं प्रभु आ गया, प्रभु ने बचाया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करदी हां कि मेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे नूं बचाया। गवाही देना चाहती हूँ। कई दिनों से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था, तो मैंने पेस्टरनी दीदी से बोला भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता। उसकी वजह मेरा बेटा टेंशन में रहता था, छोटा बड़ा वाला, तो उसके गले में इतनी बड़ी गांठ होगी। तो मैंने दीदी से प्रार्थना कराई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही और है मेरे इतनी बड़ी पैर की गांठ हो गई थी, तो मैं शनिवार को आना चाहती थी उपवास रख के, तो मेरा पति मुझे आने नहीं दिया। तो मैंने अभिषेक वाला तेल पेस्टर जी से लिया, वो तेल लगाया और मेरी गांठ गायब हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैंने पिछले संडे दशमास दिया, इस साल से मैंने शुरू किया है दशमास देना। और आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने मोबाइल देखा, टाइम देखने के लिए मोबाइल चक्का, तो उसमें मैसेज आया हुआ था। मैंने मैसेज पढ़ा तो उस पर 15,000 रुपये अकाउंट में आए हुए देखे। मैंने कहा नहीं ऐसे ही है। फिर मैंने लाइट जला के फिर दोबारा से 3 बार उस मैसेज को देखा भी 15,000 रुपये आए हुए हैं, और 2018 के आए हुए हैं, कोई फार्म भरा था मैंने। फिर मैंने वो पैसे ऐसे नहीं आए, मैंने परमेश्वर के लिए दशमास निकाला, इसीलिए ही वो पैसे परमेश्वर ने मुझे कई गुना ज़्यादा करके दिए हैं। और हमेशा संडे के दिन ही मुझे आशीष मिलती है, चाहे मुझे घर में कोई चीज़ लाना है, चाहे कोई भी पैसा आना है, एतवार को ही आता है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। भाई का गुर्दा जो था वो सूख गया था। हाँ जी, सूख चुका था बिल्कुल। फैक्शन 80,000 फैक्शन हो गए थे। 80,000 हाँ जी, इन्फेक्शन हो गया था। हाँ जी। तो प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। कि इनकी मम्मी के ना नाड़ ब्लॉक थी पैर की, तो प्रेयर टावर पे फोन किया, प्रार्थना करवाई, और प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगाई दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पे गांठ थी तो पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।
सो कैसे बहन के गांठ थी छाती पे, और जब प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस गांठ को खत्म कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं सर्वखुइया से आती हूँ। कल मेरा बेटा अपने दोस्त के घर पे जा रहा था, उसको बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया, प्रभु ने उसे बचाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। 2 महीने पहले मैं इतना तगड़ा बीमार हो गया था, मैं यानी कि कोमा में चल गया था। बचने की उम्मीद ही बहुत कम थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने कहा घर वालों से कि इसको ले जाओ और घर पे सेवा पानी करो। तभी मेरे पिताजी आए पास्टर जी के पास, कहता लड़के की बचने की उम्मीद बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, इसके लिए प्रार्थना करो। और पिता से पास्टर जी ने प्रार्थना करी। इतना अभिषेक होया मुझ पर, इतना अभिषेक होया कि मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ डॉक्टर से कहा भाई इसको देखो आप। उस डॉक्टर ने भी कहा कहता मैं 20 मिनट तक देखूंगा, इसको बच गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर ले जाना। इन्होंने कहा चलो ठीक है, बचेगा तो हमारा, मरेगा तो हमारा। तो इधर पास्टर जी ने प्रार्थना शुरू करी चर्च के अंदर, उधर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर ने देखा 20 मिनट तक सही है ये, फिर और ट्रीटमेंट बढ़ाया, वो 30 मिनट हो गया, फिर आधा घंटा हो गया। करते करते वो कहता अब मैं संभाल लूंगा इसको, अब ये मेरे हवाले है। उधर खुदा ने मुझ पर इतना अभिषेक किया, इतनी आशीष दी कि मैं मरता मरता बच गया और खुदा ने मुझे बचाया। मैं खुदा का इतना धन्यवाद करता हूं कि बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और मेरी गवाही ये है कि मेरा पोता कल स्कूल में गया था, तो क्या नाम है घने सारे बच्चे थे ऊपर छत के ऊपर। वो आज वो 26 जनवरी हैगी, तो क्या नाम है डांस डूंस सीख रहे थे। 10 साल का बच्चा है गया, तो उसके ऊपर सारे बच्चे गिर गए। तो वो 10-12 पेड़ियों पे से नीचे गिरा, तो उसके कोई चोट नहीं आई। भी थोड़ी सी याद लगी कि मम्मी मेरे को पता ही नहीं मैं कैसे गिर गया वहां से, मेरे को पता नहीं कैसे मेरे को किसी ने उठाया। तो मैंने क्या, मैं कि बेटे तुझे पिता परमेश्वर ने उठाया और मैं कि तेरे को चोट नहीं लगने दी, ऊपर के ऊपर ही आपको उठा लिया। कह रहा हाँ मम्मी जी। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे पास्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 4 मान लो यहाँ पे मैं ठीक हुई, 4 चंगाई मिली। आज 5-6 महीने यहाँ पे आई थी, तो पहले मेरे पति जी, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, खूब पीटते थे मेरे को, लेकिन सब नंबर 1 है कि वो मेरे को ना पति जी ने पीटना बंद कर दिया। नंबर 2 कि मेरा बेटा इंजीनियर का कोर्स कर रहा है पटना। मेरे को टेंशन थी कि कहाँ कॉलेज मिलेगा, पटना वो कॉलेज उसको मिल गया, वो ठीक ठाक है वो। नंबर 3 कई टाइम मैं भूखी रहती थी और इस आंटी के घर पे जाके मैं खाना खाती थी, हालांकि मेरे सब कुछ है, लेकिन मेरे पति जी कोई कारण के कारण मेरे को पीटते थे। आज हमारे 4 बेटों के अंदर, दोनों बेटों के अंदर पति जी के साथ संपत्ति है और मैं भर पेट 1 रोटी या 2 रोटी खाती हूँ, लेकिन शांति से खाती हूँ इतने। और यहाँ पे भी पहली बार आई थी, तो मैंने सोचा कि पीटे ना आज मैं घर पे जाऊँ, तो लेकिन आराम से वो खाना खा के बेटे ने चावल बना लिए और खा के घर पे बैठे थे आराम से। आज मेरे को कहे कि जा तू खुशी खुशी झंडा भी लहरा के स्कूल में और जा वहाँ पे भी जा और तू तेरा टाइम पास करके आ। इतनी यहाँ से आने के बाद में मेरे को बहुत चंगाई और गवाही हुई है। पास्टर जी जय मसीह। प्रभु ने हमें नया मोटरसाइकिल दिया है, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सबसे पहले पास्टर जी को जय मसीह की, जिसने प्रभु के बारे में बताया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बाकी सारी संगत को जय मसीह की। बुधवार की बात है, बुधवार को मैं घर पे जा रहा था नया सूट सवा के, मैं पार्टी पे जाएंगे। बुधवार को जब मीरात में पहुंचा, मेरी स्कूटी इतनी स्लिप हो गई, बहुत ज़्यादा, मैं जोर से गिरा, तो सारे लोगों ने मुझे उठाया, मेरी पसली में हल्का ज़्यादा दर्द आया। मैं प्रभु में तो नाचना आ गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस समय आज जब मैं मोटरसाइकिल चाबी लगाने गया था ना, तो उस लड़के को पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मैं कहा बेटे धीरे चला ले, गिर ना जाए। तो उतनी माना एकदम बीच में स्कूटी पे जब मैं पल्ले में गिरा, लात पे भी लगी, मेरे हाथ पे भी लगी। मैं चर्च में जरूर जाऊँगा। बहुत ज़्यादा हल्की सी खरांच ही आई है, प्रभु ने मुझे हाथ दे के बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमेशा मेरे साथ साथ चलता है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह। मैं अभी खड़ी प्रार्थना में ठीक हुई हूँ। अभी दुष्ट आत्मा ने मुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया था और मैं खड़ी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हुई है। हालेलुया।
और मेरी भांजी है जिसका पैर पहले टेढ़ा था, और अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोज प्रार्थना करते हैं, तेल लगाते हैं, उसका पैर अब ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे मामा जी का लड़का है, इसमें इतनी दुष्ट आत्मा इतने साल तक रही, कब कितने लाखों रुपए लगे, मेरे मामा जी भी खत्म हो गए। फिर इसमें जिन बताया, जिन दे, इसको सांकड़ों से इतना बांध के रखते थे, 10-10 आदमी, 15-15 आदमी इसको गाड़ी में घाल के कभी कहीं ले जाते, कभी कहीं, तो भी ये तब भी नहीं आता, सांकड़े को तोड़ देता और इतना मतलब लहूलुहान हो जाता। बहुत हमारे गांव वाले सारे परेशान हो जाते इससे, बहुत इलाज कराए, कहीं नहीं आराम है। एक बार मेरी माँ अपने पियर गई मेरे ननियाल, तो वहाँ पे मेरे भतीजों की ऐसी हालत देखी, फिर मेरी माँ ने यहाँ चर्च के बारे में बताया, वहाँ पे छोटी सी प्रार्थना की, फिर इसका मन बदल गया, फिर यहाँ आया ये प्रार्थना में। तो उसी दिन से इसकी दुष्ट आत्मा और जो भी जिन था, जो भी भयंकर दुष्ट आत्मा थी, वो दूर हो गई। प्रभु ने इसको नया जीवन दिया, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सांकड़ों से बांधते थे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो वो सांकल से बांधते थे, तो क्या किस लिए बांधते थे? घर वाले बांध देते थे। ओके, तो घर वाले सांकलों से बांध देते थे से, और अब किसने चंगा किया? ईसा मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने किया। हाँ जी, मैं नशा करता सीगा जी, मेडिकल नशा बहुत करता सीगा नशा। पास्टर जी मैं YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ YouTube ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਚਨ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ। सारा नु जैम सी, मेरी गवाही तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हुई है। प्रभु ने बहुत आशीष दी है। जब मैं यहाँ आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 500 रुपये मेरे पास थे जब मैं बॉम्बे से यहाँ आया था, और प्रभु में भी नहीं था। शैतान का भी बहुत बड़ा प्रकोप था मेरे ऊपर। मेरी सिस्टर जो संतोष आप जानते होंगे, बड़ी सिस्टर, और वंदना दीदी मेरे छोटे, जो मुझे प्रभु में लेके आए और पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, मेरे लिए शैतान से मुझे मुक्ति दिलाई, और प्रभु में आने के लिए मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ कि जिस दिन मैं घर पे बैठा था, पता नहीं कैसे मेरे मन में आई कि मैं चर्च आऊँ। और उस बुधवार का दिन था जिस दिन बुधवार को प्रार्थना होती थी बीमारों के लिए, मैं आया। उसी दिन मेरे यहाँ पे बैठा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर आज बपतिस्मा सभी को दे रहे हैं, मैं भी बपतिस्मा लेना है। और उसी दिन मेरे को बपतिस्मा मिल गया पास्टर जी के द्वारा कि आज इसी वक्त ही रमेश को बपतिस्मा में दिया जाए। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने आते ही इतना काम किया कि मेरा काम बिल्कुल भी नहीं था, उस काम में मेरा बहुत ज़्यादा बरकत होती गई। और जब मैं बिल्कुल भी इसके अंदर परमेश्वर के अंदर और ज़्यादा बढ़ना चाहता था, पास्टर जी ने मेरे सर पे हाथ रखा कि आप आओ विश्वास से और भी ज़्यादा बढ़ो। और बंदगी में जब से मैंने स्टार्ट किया जाने के लिए, और मेरे घर में बरकत की आशीष होती गई। आज मेरे घर का खुद का अपना घर बन गया परमेश्वर के द्वारा, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी मेरे जीवन में कि मैं कभी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे को गाड़ी दी, उसकी भी मेरे को आस नहीं थी। परमेश्वर ने मेरे को मशीन दी, उसकी भी आस नहीं थी। मेरी मिसेस को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया अभी कि ये बच नहीं पाएगी, इसके थायराइड 284 हो गया था, जो उनके शरीर के अंदर 5 चाहिए था। पास्टर जी ने जब प्रार्थना की और आज उसका थायराइड बिल्कुल 21 रह गया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है, चंगाई दी है मेरे जीवन में। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे पास्टर जी का, जिन्होंने मेरे जीवन में मेरे पिता के द्वारा, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा कि कैसे मैं गवाही दूं कि पास्टर जी के द्वारा मेरे जीवन में बहुत बड़े काम हुए। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हालेलुया। कई दिनों से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता था,
तो मैंने पेस्टरनी दीदी से बोला भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता, उसकी वजह मेरा बेटा टेंशन में रहता था, छोटा बड़ा वाला, तो उसके गले में इतनी बड़ी गांठ होगी। तो मैंने दीदी से प्रार्थना कराई, वो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक अगुवाई हो रहा मेरे इतनी बड़ी पैर की गांठ हो गई थी, तो मैं शनिवार को आना चाहती थी उपवास रख के, तो मेरा पति मुझे आने नहीं दिया। तो मैंने अभिषेक वाला तेल पेस्टर जी से लिया, वो तेल लगाया और मेरे गांठ गायब हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दे रही है मेरी बहू है ना, उसकी भाभी वो परमेश्वर को नहीं मानती, पर उसके डिलीवरी होने वाली थी, पर उसका बच्चा जो पुट्ठा था और खून भी बहुत कम था। तो यहाँ से पास्टर जी से प्रार्थना कराई, उसका खून भी सही है और उसके बेटी दी है, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से नॉर्मल हुई है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और मैं पास्टर जी ने जब मेरे से सेवकाई के लिए कहा, पर एक पूरा हफ्ता मैं सोचती रही मैं कैसे करूंगी, कैसे मैं बोलूंगी, पर मैं नहीं जानती, पर परमेश्वर मेरे साथ था। मैं पूरा दिन प्रार्थना करती हूँ, पर मैं नहीं जानती पर कैसे करती हूँ, पर पूरा दिन मैं पवित्र आत्मा से भरी रहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हर टाइम हर घड़ी मेरे साथ होते हैं। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बच्चे की गवाही देना चाहती हूँ। इसके गोडे में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो यहाँ चर्च में आई, इसकी प्रार्थना कराई, अब बिल्कुल चंगी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गवाही और देना चाहती हूँ। मेरे पति कभी भी यहाँ आते नहीं थे, तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई भी आने लग जाए। पिछले संडे आए थे। अब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। ये सिस्टर बता रहे हैं इनके 15 साल से गांठ थी छाती में, और ये पिछले संडे आए थे, पास्टर जी से प्रार्थना कराई, और जब ये घर गए तब इन्होंने देखा वो गांठ गायब थी इनकी। तो ये पिछले संडे आ नहीं पाए, तो ये अब आज अपनी गवाही दे रहे हैं। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे अभी 3 ही हफ्ते हुए हैं, बहुत ही कष्टों ने मेरे को घेर रखा था। मेरा छोटा भाई जो मसीह में है, उन्होंने मेरे को बहुत बार सलाह दी कि तू मेरे साथ चल प्रभु की शरण में और तेरे घर में चंगाई आ जाएगी। पर मैंने किसी दुष्ट आत्मा ने मेरे को घेर रखा था कि मैं आ नहीं सका। कुछ ही दिन हुए मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने घेर लिया और हमारे घर में खाने पीने के भी वांदे हो गए। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु हमारे बीच आए, हमारी बच्ची को सामर्थ्य दिया, मेरी बच्ची को अच्छा किया। स्वर्गीय परमेश्वर जी, हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने पिछले एतवार को कहा कि इस एतवार को आज आप दर्शन देंगे, आप बात करेंगे, लोगों के प्रश्नों को उत्तर देंगे, स्वर्गदूत ने दिखाई देंगे, पवित्र आत्मा बहते जल की नदियों को देखेंगे। अपने घरों में ये परमेश्वर जी आपको चलता फिरता देखेंगे और अलग अलग प्रकार के विजन दर्शन आप दिखाएंगे कि क्या आप इनके जीवन में करने वाले हैं। आज मैं मांगता हूं आपका दास होता हुआ आज इनके साथ वैसा ही होने दे प्रभु जी। ये लोग दर्शन पाए प्रभु जी आपके। आज मेरे परमेश्वर जी प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए, ये आपके दर्शन पाए। आप इनसे बात कीजिए, इनकी समस्याओं के संबंधी इनसे बात कीजिए, जो ये पूछ रहे हैं आपसे उनका उत्तर दीजिए इन्हें। मेरे परमेश्वर जी आपको ये देखें अपने घरों में चलता फिरता, ये आपके दर्शन पाए परमेश्वर मसीह जी। परमेश्वर मसीह जी पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनसे बात कर लीजिए। ये स्वर्गदूतों को देखें मेरे परमेश्वर जी। प्रार्थना करता हूं जितने भी हमारे बीच में लोग हैं, सब पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातें करें। पवित्र आत्मा जिनसे बातें करें मेरे परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे बातें करें। जो ये कह रहे हैं वो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, उनके उत्तर दीजिए आज मेरे प्रभु जी। इन्हें दर्शन दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इनके सामने खड़े हो जाइए प्रभु जी। आप जो स्टेज के ऊपर हैं इन्हें दिखाई दीजिए प्रभु जी। आपका स्वर्गदूत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्वर्ग की ओर आते जाते दिखाई देने। जो भी ये चाह रहे हैं, आज से पूछ रहे हैं, इनसे बातें कीजिए, इन्हें दर्शन दिखाइए मेरे परमेश्वर जी। इसलिए ये सारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूं।
इसलिए इन बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं। दया कर मेरे प्रभु जी, दया कर परमेश्वर जी, दया कर मेरे परमेश्वर जी। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं जब चर्च में आई तो मुझे अब पता चला कि पिछले संडे पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी कि आज प्रभु दर्शन देंगे। तो मैंने ना इग्नोर सा कर दिया। मैंने कहा ये तो हर संडे ही होता है, हर संडे ही दर्शन मिलते हैं। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि आज मेरे साथ बहुत अद्भुत होने वाला है। तो मैं बैठी हुई थी, जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई तो प्रभु पास्टर जी कह रहे थे कि प्रभु सबको दर्शन देंगे। पहले ये पास्टर जी ने नहीं कहा था कि प्रभु हमारे बीच में है। उससे पहले प्रभु ने जब ऐसे यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर प्रभु यहाँ से उड़ रहे हैं, जैसे ऐसे एकदम से आके खड़े हो गए। मैं कांपने लग गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो बाद में पास्टर जी कहते प्रभु हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो मेरे को पता चला कि हाँ प्रभु सच में आ गए हैं हमारे बीच में। फिर बाद में मैंने देखा कि प्रभु का सिंहासन यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे लगा हुआ देखा। फिर देखा कि बहुत सारे स्वर्गदूत हैं यहाँ पे, वो ना उनके पास एक तुरही सी है इतनी इतनी लंबी, वो बजा रहे हैं प्रभु के आले दुआले, पास्टर जी के पास घूम रहे हैं। और फिर मैंने देखा प्रभु, मैंने कहा मेरा मन बहुत बेचैन था। मैं जिस 25 दिसंबर से ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ कि मैं बहुत बेचैन थी। उस दिन से प्रभु ने मुझे आज कहा बेटी मैं शांति हूँ, मैं तेरे घर में ठहरा हूँ। प्रभु ने मेरे घर पे ऐसी रोशनी दिखाई, बहुत देर तक वो रोशनी चमकती रही। मैं नहीं समझ पाई कि वो रोशनी क्या थी, पर बाद में प्रभु ने मुझे कहा कि बेटी मैं शांति हूँ और बाद में मैं तेरे घर पे ठहरा हूँ। मैं सोच रही थी कि रोशनी क्या है। बाद में मैंने देखा हमारे कमरे में प्रभु का सिंहासन लगा, वहाँ पे प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ने मेरे को दर्शन दिए हैं, जैसे ना सोने की सीढ़ियाँ परमेश्वर ना उससे उतरे हैं। परमेश्वर के ना वाइट ड्रेस पहनी है और परमेश्वर ना कलीसिया में भी चल रहे हैं और ना इतने स्वर्गदूत दिखाई दिए मुझे। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्टेज पे भी चल रहे थे। परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिए, इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत दर्शन दिए। पहले तो आवाज आ रही कि देख तेरे लिए स्वर्ग खुल रहा है और चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत दिख रहे थे और बीच में रोशनी सी दिखाई दे रही थी और आवाज आ रही थी कि देख परम प्रधान परमेश्वर है। और फिर मैं खड़ी हो गई और फिर प्रभु का हाथ आया, मुझे छू रहा है और मुझे कह रहा है कि देख तू मेरी प्रिय बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुझे बहुत बढ़ाने चाहता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का अद्भुत दर्शनों के लिए धन्यवाद करती हूँ। पहले मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर परमेश्वर ने मुझे नज़दीक से अपने दर्शन करवाए। प्रभु की ब्लू आइज थी और उसके बाद मेरे को इतनी भेड़ें दिखाई दी और उसके बाद बाजर गरजते हुए दिखाई दिए और उसके बाद झरने दिखाई दिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मसीह की। प्रभु ने आज मुझे भोगतायता से दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी ने ऐसे सीढ़ियों पे आए, ऐसे दुपट्टा सिर पे और लंबे लंबे बाल प्रभु जी के वाइट कपड़ों में आए और आके यहाँ बैठे और यहाँ से फिर सीधे फिर सिर पे दुपट्टा नहीं था। जब परमेश्वर यहाँ से जा रहे थे तो मैं और इतनी अच्छी रोशनी से मेरे को प्रभु के एकदम बिल्कुल अच्छे से दर्शन हुए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद सब नूं। मैं ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, बेटी उठ बेटी। मैं तीसरी बात ते खड़ी हुई। फिर मैनू प्रभु जी दिखे मेरे घर च चली फिरदे तुरे फिरदे मेरे घर च। मैनू अक्खां खुल्लियां तो भी पास्टर जी कोले तुरे फिरदे देखदे सी। मैं पिछे तक चलेगी तां भी मैनू प्रभु दिखी जांदे सीगे। अक्खां खुल्लियां तो भी मैनू प्रभु जी दिखी जांदे सी। बहुत देर तक दिखे मैनू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां प्रभु जी दा। हालेलुया। आंखें खुली में परमेश्वर मसीह को देखा। कहाँ पर थे परमेश्वर मसीह? चलते फिरते पे सीगे। फिर मैनू इत्थे पिछे तक चलेगी, इत्थे सारे प्रभु बाल खुले सी प्रभु दे, इत्थे चलते फिरते सी। सो परमेश्वर मसीह ने खुली आंखों से दिखाई दिए, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ आसपास सारे स्वर्गदूत ही दिखे और बहुत सारे आकाश में से स्वर्गदूत उतरते हुए दिखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ स्टेज में बहुत सारे फूल ही फूल पड़े हैं और स्वर्गदूत उसके पास खड़े हैं और उतर के यहाँ पर आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
आज मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, जैसे पेस्टर के हाथ पकड़ के प्रभु जैसे मेरे सिर पे हाथ रखो, पूरी रोशनी से भरे हुए, और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आज सुबह भी, मैं सुबह 5 बजे प्रार्थना करके सोई, जैसे परमेश्वर अपने रूप में ऊपर, अपने रूप में फिर रहे चर्च के ऊपर पूरी रोशनी के साथ, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जब बैठी थी तो जब पहले तो बादल से गरजे, मैंने खड़ी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा मुझे कोई खड़ा कर रहा है हाथ ऊंचा करके, पर मैं खड़ी नहीं हुई। फिर एकदम से जोर से बादल गरजे और मैं खड़ी हो गई। और फिर बाद में जब मैं प्रेयर कर रही थी वहाँ खड़ी हो, तो फुल सारी रोशनी ही रोशनी मुझे दिखाई दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहते थे, मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अगली बार मुझे समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मुझे स्टेज पे बहुत बड़ा हाथ दिखा, और उस हाथ में जैसे लहू बह रहा है बहुत, और उस लहू से ही पूरा चर्च भर रहा है, और हम सब चर्च वाले उसमें डूब रहे हैं। और पास्टर जी दिख रहे हैं इस मेज पे चलते हुए, जैसे पास्टर जी चलते हैं वो प्रभु जी थे पास्टर जी के रूप में, और वहाँ खड़े होते वैसे खड़े होके सबको हाथ दिखा रहे हैं। और मैं वहाँ पे गिर के दंडवत भी किया परमेश्वर को, और मुझे महसूस हुआ कि मैंने प्रभु के पैरों के हाथ लगाए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे घर में दिखे हैं परमेश्वर पास्टर जी के रूप में, जैसे बहुत बड़े बड़े थैले लाए हैं और मुझे अलग से दिया है, और बच्चों को भी अलग से दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज बड़ा जलाल परमेश्वर का, यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी, बहुत जलाल परमेश्वर का दिखाई दिया। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि एक अग्नि एक ऐसे घूमती हुई, जैसे कि आग आ रही है परमेश्वर की, गोल गोल जैसे घूम के, और जहाँ स्टेज पे आके पास्टर जी के ऊपर ठहर गई है। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हर जगह पे आसपास में जलाल जलाल प्रभु अग्नि है, अग्नि दिखाई दी सबके ऊपर उतरती हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, जैसे यहाँ क्रूस है और क्रूस पर प्रभु चढ़े हुए हैं, और उनके सीने से लहू बह रहा है और वो मेरे ऊपर गिर रहा है। और प्रभु ने मुझे दर्शन दिए कि आकाश खुल गया और प्रभु आ रहे हैं। और साथ में मुझे प्रभु ने दर्शन दिया कि स्वर्ग में प्रभु बैठे हैं सिंहासन पर, और प्रभु हमारा न्याय कर रहे हैं। पिता धन्यवाद हो, प्रभु जी ने मुझे दर्शन दिया। धन्यवाद। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि जब पिछले संडे पास्टर जी ने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह आपको अलग अलग तरीके से दर्शन देंगे, तो उस खुशी में कि मेरे को ये हुआ कि बस जल्दी से संडे आ जाए कि मैं प्रभु के दर्शन पाऊँ। तो जब हम आए, तो जब आराधना स्टार्ट हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए। प्रभु यीशु मसीह के चारों राग थी और प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु ने दर्शन दिए। और दूसरी बार जब पास्टर जी ने बोला कि अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे, तो प्रभु ने मुझसे बात की एकदम क्लियर तरीके से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने स्टेज पे मुझे दर्शन दिए, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारे ने जय मसीह की। सारे बहन भाइयों को मेरी गवाही है। अभी मैंने यहाँ पर प्रभु को देखा, इधर बैठा था प्रभु यहाँ पर दिखाई दिया मेरे को। मैं आज इतनी पवित्र, मेरे को पता नहीं था मैं इतनी पवित्र आत्मा में भर जाऊंगी। आज मेरे को पवित्र आत्मा से भर के आज मेरे को दर्शन दिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस बहन को कैंसर हो गया था, और कैंसर की दवाई चलती रही बीकानेर से, दिल्ली से, और बहुत सी जगहों से दवाई चलती रही। और इनके जो सिर के बाल थे, वो सारे बाल भी जो थे वो झड़ गए थे इनके सारे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब आए, तो हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया इन्हें, और आप देखो बिल्कुल चंगे हैं। इनके कैंसर था, छाती में कैंसर था, दूध की छाती में था। हाँ, तो यहाँ दूध वाली छाती में कैंसर था, और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। भाई के जय मसीह, प्रभु जी के जय मसीह। मैं पहले तो मेरा लड़का सूख के गया, मैं सुखी के दर्शन पाया। दाढ़ी बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ा में मेरे घर में है, तो मैं कहती हूँ कि मेरा लड़का गया, मैं डरती हूँ उससे, मेरे के जैसे दिखाई दे रहे। आज मेरे के 3 चक्कर मैं गिर गया,
मेरे के होश नहीं है कि क्या क्या मेरे के प्रभु जी आज दर्शन दिए। मेरे के 14 साल से मैं ज़्यादा दिन से आती हूँ, बाकी आज जितना मेरे के महसूस हुआ उतना मेरे के कभी नहीं महसूस हुआ। जय मसीह दी, रब दे दास नूं भी जय मसीह दी। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮੰਨ ਲਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ प्रभु यीशु मसीह भी जानते हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और सारे यहाँ पर बहुत से स्वर्गदूत दिखाई दिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। लिया सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ बेटी तू घबरा ना, तेनों इन्ना वड्डा मकान लेके दिता मैं। मैनू प्रभु हथ फड़ के ले गया, उत्थे खड़ाया। मैं हैरान हो गई, इन्नी वड्डी कोठी जिथे मेरी गुंजाइश भी नहीं, लै भी नहीं सकती मैं, वो मैनू ले के दिती। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बेटी को ना आज दर्शन हुए परमेश्वर के, और इनके घर पे ना स्वर्गदूत है दिख रहे हैं इनको। प्रभु जी के दर्शन हुए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैंने दर्शन देखा कि यहाँ पे पास्टर जी के साथ परमेश्वर खड़े हैं और परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने दर्शन होए न ते पानी बहुत फुहारे चले खड़े न, मैंने दर्शन होए तेन नहीं ते स्वर्गदूत बैठे दिखे न, मैंने दर्शन होए। फिर प्रभु धन्यवाद कर दिया मैं। ते दास जो बोला है भी घर में टोर फेर रहे, साढ़े भवन विच साढ़े घर च प्रभु यीशु मसीह टोर फेर रहे हैं, दास भी टोर फेर रहे हैं। धन्यवाद मैं कर दिया मैं पिता। हालेलुया। आज मेरे को परमेश्वर का दर्शन हुआ, जैसे यहाँ से दूत दिखे मेरे को बहुत सारे, और परमेश्वर यहाँ स्टेज पर आए। फिर यहाँ से सारे चलते फिरते देखे वहाँ पे, फिर दोबारा फिर मैंने यहाँ देखे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती। हालेलुया। इस स्टेज से पास्टर जी चल रहे हैं, पीछे प्रभु हथ ला के मोढे ते खड़े ने, पास्टर प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रभु जी पीछे खड़े ने। मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु ने दर्शन देखा। मैं यहाँ से जैसे चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे कंधे पे हाथ लगाकर साथ चल रहे हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं।